Hello guys, welcome here, welcome to my channel and welcome to movie reactions. Finally another reaction to the movie Airlift that was out in 2016 and the actual events were happening in the 1990s. First of all, before watching the whole movie and reading the plot, I just want to tell you yeah, I know it's not the best outfit for this movie, just because I watched the trailer of this movie and it's not a comedy, it's not a funny movie, and it's a little bit tragic, as it should be. But today's so hot, extremely hot for me, plus 30, so I can barely breathe now, being at home without an air conditioner. So I'm wearing this top. Actually, tell me in the comments how do you like it, okay? And okay, let's go to the plot of the movie. First of all, when I was reading the plot, I thought why Kuwait? Why Indians lived in Kuwait? Do they live there now? So I also searched about it. Okay, first of all, about the plot. Airlift movie is inspired by real life coincidence of human evacuation, especially in war zone areas. The movie is an Age of the Seas entertaining thriller. Okay, it's a thriller. The story based on real incidents, Gulf War, when Saddam Hussein invaded Kuwait. Okay, wait, where is another plot? Something else. What should be there? Kuwait-based businessman as he carries out the evacuation of Indians based in Kuwait during the invasion of Kuwait by Saddam Hussein's Iraq, which led to the beginning of the Gulf War. The film was it should be something heroic of the main character. I can't find it, but I saw it in the trailer. Carlos Indian's businessman becomes the spokesperson for more than 170,000 stranded countrymen. So he somehow will help them, maybe save their lives, I don't know, so we'll see in the movie. And about Kuwait, first of all I googled where it is located, near Iraq, and why Indians moved there, for multiple reasons, primarily because of economic opportunities, better life conditions, strong economy, oil gas sector, numerous job openings for Indian professionals, skilled workers, Kuwait's high standard of living, blah blah blah, reliable infrastructure, good healthcare, attractive destination for Indian expats. Okay, so now I understand why many Indians were moving to Kuwait. Maybe you're moving there now too, I don't know. I actually, before this movie, have never heard about Kuwait at all. Okay, the leading actor, he is Akshay Kumar, and wait, Akshay Kumar, Ranji, Akshay Kumar, box office, Akshay Haripatan, wait. Okay, so I've seen the leading actor of this movie, Akshay Kumar, in some other movies. First of all, in the trailer of Houseful 5, also in Kizari movie, and Skyforce 2. Okay, so let's go to watching the actual movie. Okay. 1990s, how things were there during the war. Okay, it should be about the bravery of this person. We'll see. Okay, so let's go and watch the movie. And don't forget to like this video, subscribe to my channel, and leave some comments about how did you like the movie, okay? And how did you like my reaction? And let's just discuss about this movie, okay, in the comments. So let's go. Kuwait, August. It looks like India at first glance. Or some Muslim country. Is it a Muslim country? Humor for Arabs. Oh, I'm Amir Prince Ranjit, answerable to His Excellency, the Emir. But Ranjit, this deal would mean a lot of your friends will be unhappy with you. So how do you explain that? To me, Prophet explains everything. Everything. Always a shrewd businessman. You should rule, Your Excellency, and let me slave in peace. Inshallah.
Inshallah. Masalam. Allah Hafiz. I just know a lot of sayings, like Islamic sayings. Just was curious about it. गधा गधा नहीं यार गधा तुम्हारे हिंदुस्तान में बहुत होते होंगे लेकिन हमारे कुवैत में सिर्फ मुझे ही मिलते हैं प्ले सम म्यूजिक ओके मैं तुम सिर्फ नाम के कुवैती मुझसे कुछ सीखना मत थैंक यू Okay, just usual family for now. Usual rich family for now. सिमू को सुलाया नहीं तुमने अभी तक डोंट वरी, पार्टी के लिए लेट नहीं होंगे आप। The party? और वैसे भी बच्चे हैं, आपकी गाड़ी नहीं है कि चाबी निकाली और बंद हो गई। हाँ तो फायरिंग शुरू डिसाइड कर लो फायरिंग करनी है या पार्टी करनी है मैं डिसाइड करूँ। पार्टी करते हैं Party, they mean like being like real party. Okay. घर वाले सब खुश हैं? जी मैडम, बेटी फर्स्ट टाइम इंडिया देखेगा ना। अरे आगे देखो गाड़ी ठुक जाएगी नायर साहब इंडिया नहीं है वो ठीक है दिखा लो अपनी बेटी को 4 साल की है कोई रिश्वत भी नहीं मांगेगा दिखा लो अच्छा लगेगा उसको Okay, it starts pretty peacefully. रंजीत प्रेम किधर है प्रेम मैंने तो उसको इनवाइट किया था आया नहीं पहले से बर्बाद किया फिर इनवाइट किया क्यों आएगा वो फवाद वाली डील उसकी थी रंजीत तुमने से छीनी है बिजनेस और दोस्ती अपनी जगह होती है मिक्स नहीं करना True, you should never mix it. मैंने उसे इनवाइट किया अब नहीं आया तो मेरी गलती नहीं है वो पर एक घर तो डांट But it's better if you don't do business with your friends or family. It will always end नहीं राक्षस bad. I would never go with my man to such events where like girls dance half naked. I'm just saying. Just my opinion. Camp? Labor camp? What? Damn! They scared me! And I have the sound in my headphones, like I felt it so real. Nice transition from that happy place to this. So unexpected. But okay. I guess that's how usually wars start. Absolutely unexpected in the middle of the night. Tanks. Yeah, they're invading Kuwait. They're going to the mosque? Really? So they told him everything. इराक और हम कोतियों के बीच में काफी वक्त से झगड़ा चल रहा था तनाव उसी को लेकर था जिस बात को लेकर अक्सर उठता है पैसा Money? का $14 बिलियन का कर्जा था जिसे इराक माफ करवाना चाहता था कुवैत पे दबाव डाल रहा था कि वो कम तेल पैदा करें ताकि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस बढ़े और इराक ज्यादा प्रॉफिट कमाए Oh, now they explained. कुवैतियों पे एक और इल्जाम भी था तेल चुराने का इल्जाम हमें इस तनाव की आदत पड़ गई थी और यकीन हो गया कि तनाव ही रहेगा लेकिन हम गलत थे वो बदला और उसके साथ हम जैसे कोयतियों की पहचान भी बदल गई रंजीत, अशोक का फोन आया था अशोक रात को 3 बजे क्यों फोन करेगा? अपैरेंटली सद्दाम ने कुवैत पे हमला कर दिया कम ऑन रंजीत। हम श्योर सद्दाम छोटा मोटा हुसैन। एक्शन हुआ होगा बॉर्डर पे और क्या रंजीत, एक काम की नहीं करती तुम यूएन से मूव लंदन चले जाओ क्या सच में तुम्हें लगता है खतरा है किसी बात का? आई डोंट Threat? I'm sure स्कूल बंद होंगे थोड़े दिन के लिए एक हफ्ते बाद तुम For a few days? Oh my god, I'm sure it will be worse. सद्दाम ने सच में तो नहीं अरे, हमला Saddam nothing has happened. What is Hussein. wrong with you? Nothing, I'm just It's really threatening. Do me a favor. जाओ तुम सो जाओ
I just want to make some calls. You go. Okay. Why the woman is so careless? She doesn't care about it. You should run and hide somewhere and do something. अब मुझे लेकिन- जरूरत है साला कोई फोन उठाने को तैयार नहीं। तुमने वो इंटरनल मिनिस्ट्री में शेख फैसल को ट्राई किया? अब तुम मुझे मत सिखाओ कि किसको फोन करना चाहिए। तुम मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो? कर चुका हूँ अमृता। रिलैक्स रंजीत। He's just worried. He's just nervous. एक गवर्नमेंट ऑफिशियल इधर है नहीं, प्रैक्टिकली बिना गवर्नमेंट के बैठे हुए हैं और तुम होगी। जा चुकी है? जी हाँ। पहला मौका देखते ही अपनी जान बचा के भाग गए? अपने लोगों की तरफ इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं? I have goosebumps. It really feels terrifying. You know what is worse? That is based on real, true events. That's what I'm thinking about. Not just about the movie. Oof. Damn. Sorry, but I'll sit with this face like the whole movie. Because what the is going on? Let me guess. आपने पहचाना नहीं मुझे। 1 साल पहले आप अमृता भाभी और बेटी के साथ बगदाद आए थे एक फंड रेजर के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह आपका सिक्योरिटी के इंचार्ज कौन थे? It was 2 him. दिन आपका साथ रहा, फिर भी पहचाना नहीं। I remember. नो यू डोंट। सक्सेसफुल लोगों को सिर्फ इम्पोर्टेंट लोग याद रखना चाहिए। और आप अचानक मैं इम्पोर्टेंट हूँ। मेजर खलफ बिन जैद अपने गाड़ी के विंडशील्ड पर लगा दीजिए, चेक पॉइंट पर काम आएगा, वरना रोज मुलाकात हो सकते हैं मुझसे। आप जा सकते हैं। Will they just kill all of the Kuwait people? सैनी साहब, कटियाल साहब, आप आइए यहाँ। आइए। थैंक गॉड आपने देख लिया। Indian embassy. Bridge, what the hell is happening? क्या हुआ? Calm down. What happened? मेरी आंखों के सामने मेरे ड्राइवर को गोली मार दी एक 16 साल के इराकी सोल्जर ने। मुझे दासमान पैलेस उठा के लेके चले गए। हम मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि वहाँ का जो इराकी मेजर है वो मुझसे दोस्ती कर रहा है या मुझे धमकी दे रहा था वो। He was threatening you. ब्रिज, कुछ भी करो, मेरे और मेरे परिवार वालों को यहाँ से निकालो। हमको यहाँ से निकलना है। निकलना 1,70,000 हिंदुस्तानियों को भी है। निकलेंगे कैसे? 170,000 Indians. अपनी फैमिली को यहाँ ले। Oh, now you're not so chill, right? Now you see the threat. Yes, they're killing all Kuwait or like Arabic people. Oh. You know, I've noticed how many just teenagers are fighting there. They're just kids, some of them. It seems like this. I hope his family is still alive. अमृता! अमृता! Okay, beside of the movie itself, notice how good he's acting.
He like really feels it. Like it's happening with him. जोसेफ मेरे घर से फोन आया। रंजीत, तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी। सिमू को मैं यहाँ पे कैसे छोटी बातें लाई हूँ मैं जानती हूँ। रंजीत प्लीज लेट्स जस्ट लीव। तुम कह रहे थे ना हमें लंदन जाना चाहिए। लेट्स गो टू लंदन। जस्ट गेट अस आउट ऑफ हियर। नायर को गोली जस्ट मार दी। लिसन। तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? बेटा नायर को गोली मार दी। तो तुम हॉस्पिटल में थे? तो अब कैसा है वो? Hospital. हाँ, This woman is insane. Why she doesn't understand everything. रंजीत So dumb. He's dead. क्या बच्चों के हाथ में गन्स दे रखी है उन लोगों ने। Yeah, little I saw it. और अल सैयद क्रेन से लटका हुआ था। तो रंजीत कटियाल क्या चीज है? नायर की बॉडी के बारे में पूछ भी नहीं पाया मैं उन लोगों से। उसकी वाइफ का भी 5 मिनट पहले फोन आया था। Oh, he has wife. Oh. Oh, who is it? It is that man's wife? Oh, so she's also here. Where are they going? How they gonna do it? How they gonna live? हर चीज के कीमत होती है मिस्टर रंजीत। मैं सारी कीमत देने को तैयार हूँ। कुवैती दिनार के तो मिट्टी की वैल्यू है। 3 लोगों का $3 लाख। हम 3 नहीं हम 5 हैं। 5 मेरी ड्राइवर की बीवी और उसकी बच्ची भी है। मौके है फैमिली लेकर निकल जाओ। सोशल वर्क में लग गए तो फंस जाओगे मिस्टर रंजीत। खैर मैं आपके पैसे का इंतजाम कर सकता हूँ। हसन सईद, हसन सईद। शुक्र। कितने हमारे पास? पहले 200 थे सर, अब मैं कैश 500। की बात। सर ऊपर वाले का शुक्र है कि आप आ गए। अब लग रहा है कि कुछ ठीक हो जाएगा। डर लग रहे हैं। आप ही बोल दीजिए हम क्या करेंगे। A dilemma. Save other people somehow and stay here. Live with his family and not help others. What would you choose? देखो सबको यहाँ अकोमोडेट कर सकते हैं कि नहीं? नहीं तो कोई और इंतजाम करें। सब लोग बैठो। His wife doesn't like this decision. एक्सक्यूज मी। टॉयलेट्स बहुत गंदे हो गए हैं। बास मर रहे हैं। आप ही बॉस है ना, इसलिए इन्फॉर्म कर रहा हूँ। आप यहाँ काम करते हैं? नहीं, साफ हो जाएगा तो बता देना प्लीज। Crazy मैं man. इस कमरे में हूँ। ए, साइड में बैठो ना। ये ड्राइवर कुली लोग के साथ मिल के He's like in a hotel. कौन है? मैं नहीं जानता सर। 101 लोग और आया रात में इधर। इसका जैसा बहुत लोग हैं। 1000 का करीब इंडियंस तो बाहर भी बेट करता है सर। आप बोले तो आइडेंटिफाई करके जो लोग अपने ऑफिस में काम नहीं करते उसको जाने को बोलूं। नहीं। How he gonna help everyone? It's impossible. अस्सलाम वालेकुम सर। आइए। सो जेंटलमैन, जो कुछ भी है वो ये है, आपस में डिवाइड कर लीजिए। और रंजीत, इब्राहिम। जी सर। रंजीत साहब, ट्रक वक्त तो लाए नहीं होंगे, तो ये सारा सामान लोड करके तुम्हारे ऑफिस पहुंचा देगा। एक बात बताओ, हम लोग ये सारा खाना डिवाइड क्यों कर रहे हैं? हम लोग क्यों ना हम लोग सब एक ही जगह पर इकट्ठे हो जाएं और ये सारा का सारा सामान वहां ले आए। यू नो, अगर हम सारे इंडियंस साथ में रहेंगे तो बड़ा। हम इंडियंस? ओह कम ऑन। तुम कब से इंडियन हो गए रंजीत? कल तक तुम कुवैती थे ना। रंजीत, पहली फ्लाइट पकड़ के निकल लेते हैं। रंजीत सही कह रहा है। अरे यार, अपनी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करो। 1,70,000 की करने बैठेंगे ना तो प्रॉब्लम बढ़ेंगी, True. कम नहीं होंगी। Such hard dilemma.
सुपरमार्केट के बाहर न तुम्हें कोई जानता न मुझे कोई जानता। हमारी कोई औकात नहीं है। अगर हमारी पहचान है तो सिर्फ एक कि हम कोईती नहीं हिंदुस्तानी है। एक बार कैंप सेट हो जाए तो मैं अपने 20 बच्चे को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। As long as you're with us. Ah, you are trying to flatter me. प्रेसिडेंट भी इंडियंस को अपने दोस्त समझते हैं। आप जहां चाहे कैंप लगाए, मेरे परमिशन है। शुक्रिया। बट फैमिली को कैंप लेके जाने की क्या जरूरत है? भाभी जी से कहिए वो सेफली रह सकते हैं। अवार्ड यू हैव माय वर्ड। I just wanna cry, I don't know why. Just because of the whole situation. Looks like some university. चलो अमृता। नहीं, मैं सिमू के साथ ही किसी कैंप पे नहीं रह सकती। अरे अंदर सब साथ में रहेंगे, we'll be safe। सेफ? ये सिमू के पास मुझे ये बुलेट मिला है। इन लोगों को तुम्हें सेटल करना है, तुम करो। तुम यहाँ पे हमें मत फंसाओ। अमिताभ। नहीं, हमें जब लेके जाना होगा तुम घर से लेके जाना रंजीत। मैं मैडम को छोड़ के आ रही हूँ, तब तक ध्यान रखो। कैंप में जरा भी डिसिप्लिन नहीं है। I'm so tired of this man. सुना नहीं? सुनो। गुड। एम्बेसी चलते। What happened? Did they leave? But they cannot leave anyhow. They कहाँ हैं सब लोग? चले गए। gone where? ब्रिज कहाँ है? पूरी एम्बेसी वैकेट कर दी गई है। मैं भी निकल ही रहा हूँ। Evacuated? सद्दाम ने कहा है कि एक ही देश में दो एम्बेसीज का क्या फायदा। बगदाद है ना सबकी एम्बेसीज। इधर से सारा इंडियन क्या बगदाद जाएगा? अरे मुझ पे चिल्लाने से क्या फायदा? एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से बात कीजिए दिल्ली, वही बताएंगे इंडियंस को क्या करना है। एक मिनट। आपके पास कोई नंबर है? किसको फोन कर सकते हैं हम लोग? Minister of New Delhi. Huh. अरे मिश्रा जी, चलिए। They don't even care. They don't even answer. Really? They went drinking tea. Where people here are at risk. They're taking a break. हेलो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। जी मैं कुवैत सिटी से रंजीत कटियाल बोल रहा हूँ। जी, हमें सिर्फ कुछ नंबर्स दिए गए थे। वैसे मेरी बात किससे हो रही है? आई एम जॉइंट सेक्रेटरी संजीव कोहली। जी मुझे कुवैत में रहे इंडियंस के सिचुएशन के बारे में बात करनी थी। हम इंडियंस ने एपेक्स स्कूल के अंदर एक कैंप बिठा रखा है। देखिए भाई, मैं गल्फ डिवीजन में नहीं देखता हूँ जी। आप को गलत नंबर मिल गया। आप लुक मिस्टर कोहली, वी नीड हेल्प एंड वी नीड इट राइट नाउ। मैं जो है ना गल्फ डिवीजन के जॉइंट सेक्रेटरी को कम्युनिकेट कर देता हूँ जी। मुझे स्कूल का नंबर दे दीजिए।